Good morning students. Today in this video I am going to discuss some question answers of class 11th geography chapter 1 geography as a discipline. So let's start. So question number 1 is define geography. तो इसमें आपको geography को define करना है. Answer: The term geography was first coined by Eratosthenes, a Greek scholar. The word has been derived from two Greek words. तो जो geography है वो दो Greek words से मिलके बना है and these words are geo which means earth and graphos which means description. If we put together these two words then it makes geography and geography is description of earth. The earth has always been seen as the abode of human beings and thus scholars define geography as the description of earth as the abode of human beings. यानी कि इसमें हमें अर्थ को स्टडी करना है कि किस तरह से वो मानव का घर है. Question number 2 is differentiate between systematic approach and regional approach. So the main differences between systematic and regional approach are as follows. Systematic approach of geography was introduced by Alexander von Humboldt, a German geographer, whereas the regional approach of geography was developed by another German geographer and a contemporary of Humboldt, Karl Ritter. Next difference is, in systematic approach, a phenomena is studied world over as a whole and then the identification of topologies or spatial pattern is done. Whereas in regional approach, the world is divided into regions at first hierarchical level and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. These regions may be natural, political or designated. So I explain this with an example. If one is interested in studying natural vegetation, the study will be done at world level as the first step. The topologies such as equatorial rainforests or softwood conical forests or monsoon forests etc. will be identified, discussed and delimited. Whereas in regional approach, if one is interested in studying natural vegetation, the study will be done for different regions like equator, monsoon region, desert region, tundra region etc. तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि जो सिस्टेमेटिक अप्रोच है उसमें क्या है, वर्ल्ड लेवल पे ही जो है अलग अलग टोपोलॉजीज में नेचुरल वेजिटेशंस को स्टडी किया जाएगा, जबकि जो रीजनल अप्रोच है उसमें पहले पूरे वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद उस एरिया की या उस रीजन की जो है वेजिटेशन को स्टडी किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी. तो फिज़िकल ज्योग्राफी यानी बच्चों जो आप 11th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो फिज़िकल ज्योग्राफी है. तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है. तो इसका आंसर है फिज़िकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ईच एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. Landforms provide base for agriculture, industries, transport and communication and settlements. Mountain provide water to rivers. Forests center for tourist spots. Climate influences on the cropping pattern, livestock, food and clothes of the people. Climate and precipitation influence the type of forests. Oceans provide food, water transport and influence the climate. They are the source of hydrological cycle. Each element of physical environment is important for human being. So all these are the elements which I am talking about: landforms, mountains, plateau. All these are elements of physical environment. So these are very important for human beings, because landforms provide the base on which human activities are located.
For example, the plains are utilized for agriculture, plateaus provide forests and minerals, mountain provide pastures, forests and tourist spots, and are sources of river providing water to lowlands. Climate influences are house types, clothing and food habits. जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही हाउस टाइप होता है. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि प्लेन एरियाज़ में हाउस टाइप डिफरेंट है, जबकि माउंटेन एरियाज़ में हाउस टाइप जो होता है वो डिफरेंट होता है. स्लोपिंग रूफ्स होती है वहाँ पे. क्लोथिंग पैटर्न इज़ ऑल्सो डिफरेंट. फूड हैबिट्स आर डिफरेंट. So the physical environment provides resources and human beings utilize these resources and ensure their economic and cultural development. यानी कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है. जैसा फिज़िकल इन्वायरमेंट होगा उससे हमको ये पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा रिसोर्स है और उसको हम क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे. और उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कल्चरल ग्रोथ होगी. तो इसलिए भी जो है फिज़िकल इन्वायरमेंट की स्टडी जो है बहुत ज़रूरी है. देयरफॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट इज़ इसेंशियल इन स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. क्वेश्चन नंबर 4, explain different branches of physical geography. So answer is, it has 4 sub branches which are as follows. First is geomorphology. It is concerned with the study of landforms, their evolution and related processes. यानी कि सबसे पहली जो ब्रांच है वो है जियोमॉर्फोलॉजी और उसमें स्टडी होता है लैंडफॉर्म्स. कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज़, ये सब, और इनका एवोल्यूशन कैसे ये बने, किन किन प्रोसेसेस से बने, ये सब जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं. सेकंड इज़ क्लाइमेटोलॉजी. इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन्स. तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक टाइप्स, ये सब जो है हम क्लाइमेटोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलॉजी. इट स्टडीज़ द रेलम ऑफ वाटर over the surface of earth including oceans, lakes, rivers and other water bodies and its effect on different life forms including human life and their activities. हाइड्रोलॉजी में हम जितनी भी वाटर बॉडी हैं, चाहे वो ओशंस हैं, लेक्स हैं और बाकी रिवर्स वगैरह जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ में, उनको स्टडी करते हैं और उनका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे और उसकी एक्टिविटीज़ पे, तो ये सब भी हम हाइड्रोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज़ सॉइल ज्योग्राफी. इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़. और जो सॉइल ज्योग्राफी है उसमें हम सॉइल कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, क्या क्या टाइप्स होती हैं, उसकी फर्टिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ पे कौन सी सॉइल होती है, उसका यूज़, ये सब जो है हम सॉइल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मैटर्स आर स्टडीड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी. आंसर, फॉलोइंग फैक्ट्स आर स्टडीड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी एंड दे आर, first is social or cultural geography. It is concerned with the study of society and its spatial dynamics as well as the cultural elements contributed by the society. तो cultural geography में हम सोसाइटी का जो कल्चरल एस्पेक्ट है, उसके एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन ज्योग्राफी. इट स्टडीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एसेट्रा. तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सब जो है हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी. इट स्टडीज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स. तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम
रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के जो मेन फीचर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इट स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एसेट्रा। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ह्यूमन की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ये सब को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। इट स्टडीज़ द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। In other words, it studies how history has influenced the geography of a region. तो historical geography में हम study करते हैं कि history ने किस तरह से जो है किसी भी area के geography को influence किया है, कि past में कैसा था, presently ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ है, ये सब जो है हम historical geography में study करते हैं। Next is political geography. It studies the impact of political events and studies boundaries, space, relations between neighboring political units, delimitation of constituencies, election scenario, and develops theoretical framework to understand the political behavior of the population. तो political geography में हम जितना भी political aspect है, यानी कि उसमें हम बाउंड्रीज़ स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ और इलेक्शन सिनेरियो, ये सब जो है पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन, ये सब जो है हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। और ये सभी जो है ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर है।